नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री व जनता दल एस प्रमुख एच.डी. देवेगौड़ा का चिंचोली में आगमन। पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने किया भव्य स्वागत। फूल बरसाए गए, बाजे गाजे के साथ निकाली गई रैली। बीदर के विभिन्न इलाकों में कचरे और गंदगी होने के बारे में केपी न्यूज के तवज्जो दिलाने का हुआ असर। सफाई हुई शुरू। बीदर के विधायक रहीम खान ने सीएमसी अधिकारियों को दिए सफाई के निर्देश। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत। 72 वर्ष का मरीज अस्पताल में था भर्ती। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने दी है जानकारी। भटिंडा में एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा की भारी चूक। विदेशी फंड पर रोक के बाद ओडिशा के सीएम ने दिखाया बड़ा दिल। मदर टेरेसा की चैरिटी को दी लाखों की मदद। नागपुर में 2 महिला डॉक्टर्स ने जीवन भर साथ रहने का किया फैसला। गोवा में करेंगी शादी। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं। स्थानीय समाचार। चिंचोली के बीजेपी नेता संजीवनी रमेश याकापुर ने अपने हजारों समर्थकों के साथ चिंचोली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके जनता दल सेक्युलर जेडीएस में शामिल हो गए। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कलबुर्गी के चिंचोली तालुका में मंगलवार को जनता दल के प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा पहुंचे। उनके चिंचोली आगमन पर स्थानीय जनता दल एस के अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। देवेगौड़ा के आगमन की खुशी में एक भव्य बाइक रैली निकाली गई और देवेगौड़ा की गाड़ी पर फूल बरसाए गए। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री व जेडीएस प्रमुख ने स्वागत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बीदर दक्षिण के विधायक एवं जनता दल एस के विधायक दल के उपनेता बंडप्पा खाशमपुर, बीदर नगर सभा वार्ड नंबर 32 के पार्षद मोहम्मद नवाज खान, समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान सहित अन्य जनता दल नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री व जनता दल सेक्युलर प्रमुख एच.डी. देवेगौड़ा, बंडप्पा खाशमपुर और संजीवनी रमेश याकापुर ने संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता डॉक्टर मुजाहिद मसूद, असलम खान और कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट।
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೀದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಮುತ್ತಂಗಿ ಗೋಡಾಡು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಹೊಂಟವ ನಾನು ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ ಒಬ್ಬ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಅಣ್ಣ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಂಗಲ್ಲ, ಯಾರ ಎಮ್ಮೆಲ್ಯೆ ಆಯ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರೀ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದ ಮಾತಾಡೋದರ ಹೊರತಾಗ ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶೋಭೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಮಾತು ಕೇಳೋದಿದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಜನರ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತ ಕಲ್ಚರ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂಶ ದೇವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಂಗ ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಏನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು, ಹಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಡವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕುಮಾರನವರು ನಿನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಾಯಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ 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 ತಗೊಂಡು ಓಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ
ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರೋಗಿಗಳ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾರಾಯಣ ಡ್ಯಾಮಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಕೆನಾಲ್ ಕೆಲಸ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಇವತ್ತು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತಾರಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? बीदर दक्षिण के विधायक एवं जनता दल एस के विधायक दल के उपनेता बंडप्पा खाशमपुर मंगलवार को चिंचोली पहुंचे। वहां उन्होंने बसवेश्वर की मूर्ति को फूलमाला पहनाई। साथ ही बंडप्पा खाशमपुर ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनसे बात की। बीदर के युवा नेता व काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान भी साथ थे। बीदर दक्षिण के विधायक एवं जनता दल एस के विधायक दल के उपनेता बंडप्पा खाशमपुर के चिंचोली में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के आगमन पर स्वागत कार्यक्रम में जाने के लिए निकले तो रास्ते में गांव वालों ने उनका स्वागत किया और अपने विधायक बंडप्पा खाशमपुर से बात की और उन्हें अपनी समस्याएं बताई। इस अवसर पर बीदर के युवा नेता व काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान भी उनके साथ थे। केपी न्यूज के संवाददाता डॉक्टर मुजाहिद मसूद, असलम खान और कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 पिछले कई महीनों से बीदर के विभिन्न इलाकों में कचरा और गंदगी के होने की तवज्जो दिलाता आ रहा है। 2 दिन पहले भी केपी न्यूज ने प्राइवेट अस्पताल के पास कचरा, गंदगी और नालियों में गंदा पानी होने पर सीएमसी अधिकारियों और जिला प्रशासन की लापरवाही को बताया था और जल्द से जल्द इस कचरे और गंदगी को साफ करने के लिए तवज्जो दिलाई थी। केपी न्यूज 24/7 की इस खबर का असर यह हुआ कि प्राइवेट अस्पताल के करीब पड़े कचरे को साफ कर दिया गया है। साथ ही कल मंगलवार को बीदर के विधायक रहीम खान ने सीएमसी अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्हें सफाई न करने पर फटकार लगाई और उन्हें शहर में जहां जहां कचरा और गंदगी है वहां सफाई करने का आदेश दिया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश में पहली मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जयपुर में हुई यह मौत 72 साल का मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुआ था। फिर नेगेटिव होने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अस्पताल में ही एडमिट रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इसको ओमिक्रॉन से ही मौत माना जाएगा क्योंकि अनइंटरप्टेड हॉस्पिटलाइजेशन था। गौरतलब है कि पूरी दुनिया सहित भारत में इस समय कोरोना के नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट्स को कोरोना मामलों की संख्या में आए इस उछाल का कारण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट फंसने के बाद अपना पंजाब दौरा रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसे भारी सुरक्षा चूक करार देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम मोदी वहां 15 से 20 मिनट फंसे रहे। इस चूक की वजह से पीएम मोदी फिरोजपुर में बिना कार्यक्रम में हिस्सा लिए ही भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट गए। इस चूक के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने के लिए भटिंडा पहुंचे थे। उन्हें हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर ले जाया जाना था, लेकिन बारिश और खराब दृश्यता के कारण उन्होंने मौसम साफ होने के लिए लगभग 20 मिनट तक इंतजार किया। ओडिशा ने मदर टेरेसा द्वारा प्रारंभ किए गए कैथोलिक धार्मिक और परोपकारी संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का फैसला किया है। भारत के कानूनों के अंतर्गत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने पर फॉरेन डोनेशन रोके जाने के बाद ओडिशा ने यह फैसला किया। राज्य के सीएम नवीन पटनायक के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि
वह ओडिशा में चैरिटी की ओर से संचालित किए जाने वाले 13 संस्थानों को मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर से 78.76 लाख की मदद देंगे। वर्ष 1950 में नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा द्वारा स्थापित इस चैरिटी का मुख्यालय कोलकाता में है। चैरिटी की ओर से ओडिशा में कई कुष्ठ घरों और अनाथालयों का संचालन किया जाता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। छपरा के जिला परिषद चुनाव में एक नए तरह का प्रयोग देखने को मिला है। राष्ट्रीय जनता दल समर्थित जयमित्रा देवी अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुई तो भाजपा समर्थित भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री प्रियंका सिंह अध्यक्ष चुनी गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रियंका सिंह के उपाध्यक्ष बनते ही राष्ट्रीय जनता दल उन्हें अपनी ओर करने में कामयाब रहा। प्रियंका सिंह ने जीत के बाद दिन में महराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल के हाथों मिठाई खाई, तो फिर शाम ढलते ढलते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंच गई। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी पुलिस लाइन में महिला रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रशिक्षण लेने वाली महिला रिक्रूट आरक्षियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बताते चले कि झांसी पुलिस लाइन में महिला रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण ले रही थी। आज पुलिस लाइन में उनका पासिंग आउट परेड समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस उप निरीक्षक जोगेंद्र कुमार और एसएसपी शिवहरी मीणा मौजूद थे। एसएसपी शिवहरी ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के लिए हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। पासिंग आउट हुई है। पिछले 6 महीने से झांसी आरटीसी में 122 रिक्रूट कांस्टेबल्स का गहनतम प्रशिक्षण जारी था, जिसमें आउटडोर इंडोर का प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने बहुत मेहनत करी। उसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं सदैव कदमों से इन्होंने पासिंग आउट परेड पास करी है। हमारे डीआईजी रेंज महोदय मुख्य अतिथि थे, बाकी अधिकारी गण भी आए हैं। तो समस्त जो रिक्रूट कांस्टेबल्स हैं उन सबको बधाई। साथ ही साथ इस महान भूमि पर इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से जो महारानी लक्ष्मीबाई जी की धरोहर है उससे इंस्पायर होते रहेंगी और आगे इनके उज्जवल भविष्य के मुकाबले। महाराष्ट्र स्थित नागपुर में 2 महिला डॉक्टर्स ने शादी करके साथ रहने का फैसला किया है। बीते हफ्ते एक कमिटमेंट रिंग सेरेमनी में दोनों महिला डॉक्टर्स ने एक जोड़े के रूप में एक साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया। महिलाओं में से एक पारोमिता मुखर्जी ने कहा, हम इस रिश्ते को लाइफ टाइम कमिटमेंट कहते हैं। हम गोवा में अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। मुखर्जी ने कहा कि मेरे पिता को 2013 से मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में पता था। जब मैंने हाल ही में अपनी मां को बताया तो वह चौंक गई, लेकिन बाद में वह मान गई क्योंकि वह चाहती है कि मैं खुश रहूं। वही सुरभि मित्रा ने कहा कि मेरे परिवार की ओर से मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कभी कोई विरोध नहीं किया गया। दरअसल जब मैंने अपने माता पिता को बताया तो वे खुश हुए। मैं एक मनोचिकित्सक हूं और कई लोग मुझसे दोहरी जिंदगी जीने की बात करते हैं,
क्योंकि वे अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। कैटरीना कैफ ने हाल ही में अपने नए घर की फोटो शेयर की थी। इन फोटो में उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला था। इस फोटो में जहां उनके स्टाइल और घर ने फैंस का ध्यान खींचा, वही एक और चीज थी जिसने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी। यह था उनका मंगलसूत्र। कैटरीना कैफ के इस शानदार मंगलसूत्र को सब्यसाची ज्वेलरी का बताया जा रहा है और इसकी कीमत तो और भी हैरान करने वाली है। इस तरह कैटरीना कैफ का मंगलसूत्र चर्चा में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना कैफ के इस मंगलसूत्र की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री व जनता दल एस प्रमुख एच डी देवेगौड़ा का चिंचोली में आगमन। पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने किया भव्य स्वागत। फूल बरसाए गए, बाजे गाजे के साथ निकाली गई रैली। बीदर के विभिन्न इलाकों में कचरे और गंदगी होने के बारे में केपी न्यूज के तवज्जो दिलाने का हुआ असर। सफाई हुई शुरू। बीदर के विधायक रहीम खान ने सीएमसी अधिकारियों को दिए सफाई के निर्देश। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत। 72 वर्ष का मरीज अस्पताल में था भर्ती। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने दी है जानकारी। भटिंडा में एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा की भारी चूक। विदेशी फंड पर रोक के बाद ओडिशा के सीएम ने दिखाया बड़ा दिल। मदर टेरेसा की चैरिटी को दी लाखों की मदद। नागपुर में 2 महिला डॉक्टर्स ने जीवन भर साथ रहने का किया फैसला। गोवा में करेंगी शादी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।